Okay, good evening everyone. I am Praveen. So, is my voice clear? Say yes or no in the chat. Yes. Yes, Okay. So, in this we will be introduced to Git and we will create an account at GitHub and we will try to create a pull request. So, did you know what is Git? Anyone in the chat box? Plus one if you know. Any rough idea you have? Okay, I think s- some will know and others are not aware of Git. Is why Git is useful? We will see later. This is the use case before the Git was introduced. When we do any small changes, then we should prepare a separate file for it. So it will look something like this. That's all. So the problem arises here. How should we maintain the changes? It is a big task for the programmers. What is Git? Git is basically a open source project developed in 2005 by Linus. It is basically a command line utility. It is a वर्जन कंट्रोल सिस्टम. तो एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम वो होता है जो तुम्हारे रिकॉर्ड्स के क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्या तुमने एडिट किया, मॉडिफाई किया है, सब वो रिकॉर्ड करके रखता है. और अगर तुमको स्पेसिफिक वर्जन चाहिए होता है तो वो तुम इजीली एक्सेस कर सकते हो. और Git is a distributed network. What does it mean? Means there is no specific server where it is stored. Full history of the project is available to all. Okay, till now, brief history. I think we should skip this. Basically, Git looks like a tree-like structure where every small changes look like a branch. Okay, Git repo. A Git repo mainly contains of commits. There are three stages of a repo: commit, stage, and push, which will be discussed later. Please wait. Here are the things. First, for making a change, we modify the local repo and then apply the command git add. This will add the changes to staging area. Staging area वो होता है जब हम ऑनलाइन रिपो पे कोड डालने वाले होते हैं. उससे पहले हम लोकल पे एक एरिया डालते हैं जहाँ पे हम स्टोर करके रखते हैं चेंजेस. फिर फिर हम उस फाइल को कमिट कर देते हैं. कमिट करने के बाद हम उसे पुश कर देते हैं ऑनलाइन प्रवीण रिपो पे. प्रवीण हाँ. ओके. वॉइस कट हो रही है. यस. ओके. Just give me a moment to sort this. Is my voice clear now? Hello. क्लियर Okay. है. Okay. Thank you.
प्रवीण स्टार्ट कर दो. हेलो हेलो Yes, Praveen, you are audible. okay okay sorry my mic is off. There are basically a three step for making changes in online repo. First, whenever we make a change, we must add it to staging area. जब भी हम कोई भी छोटे से changes करते हैं या कुछ भी करते हैं. प्रवीण प्रवीण स्क्रीन शेयर ऑफ है. Sorry for my network issues. Is it visible now? Yes, Praveen, it's visible. Okay, sorry. For making any changes in Git repo, we have three steps. First is add, commit, and push. So, what is add? जब भी हम किसी रिपो में ऑनलाइन चेंजेस मतलब ऑफलाइन चेंजेस करते हैं लोकल रिपो में, उसे हमें स्टैगिंग एरिया में डालना होता है. तो उसके लिए हम गिट ऐड यूज करते हैं. गिट ऐड क्या करता है, उसे स्टैगिंग एरिया में डाल देता है. फिर स्टैगिंग एरिया पे डालने के बाद हमारा होता है गिट कमिट. कमिट क्या करता है, उस चेंजेस को परमानेंट बना देता है, लेकिन वो अभी भी लोकली होता है. जो लास्ट स्टेप होता है पुश, वो तुम्हें तुम्हारी जो चेंजेस है उसे ऑनलाइन तुम्हारी रिपो पे डाल देता है. दिस आर दी चेंजेस. Now we are now clear with the basics. Shubham will tell you the practical implementation of these commands. Shubham, I hand over the mic to you. Okay, Praveen. Let me share my screen. Can you turn yours? Okay. So is my screen visible? Is my screen visible? Anyone? Yes, visible. Okay. So I'm using Linux and I recommend everyone to use Linux. But the basic commands that will run on Linux will also be usable on Windows. So let's see first how you create a Git repository. So I will create a folder here. Let's say so I have created an empty folder here. So how do you tell Git, which is a version control system, to track this folder, to track the changes that will happen when you start working and start creating new files in this folder? So the basic command that it is git init. So basically this tells Git to initialize. Init is short for initialize. So when I do git init enter, this tells initialize empty Git repository in the folder path. So let's see now. We have a .git folder, which is the folder that is created when you do git init. So let's see the contents inside it. .git branches config. ठीक है, तो जब भी तुम इनिशियलाइज करोगे तो ये .git फोल्डर हमेशा बनेगा. तो एक हमने एम्प्टी गिट रिपोजिटरी इनिशियलाइज कर दी. अब फाइल्स बनाना स्टार्ट करते हैं. इंडेक्स, लेट्स से आई क्रिएटेड इंडेक्स.html.
ठीक है, तो ये मेरी बेसिक इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है। गिट repo, अब मैंने एक फाइल क्रिएट कर दी और उसे सेव कर दिया। अब तुम्हें देखना है कि इस रिपोजिटरी जो तुमने गिट रिपोजिटरी बनाई है अपनी लोकल मशीन पर, उसका स्टेटस क्या है। सो व्हाट डू डू, गिट स्टेटस। सो गिट स्टेटस का आउटपुट आए कि अनट्रैक्ड फाइल्स, जो प्रवीण ने बताया था कि जो स्टेजिंग एरिया होता है। तो जैसे अभी हमने गिट को बताया नहीं है कि इस फाइल को ट्रैक करना है, मतलब इस फाइल में जो चेंजेस होंगे थ्रू आउट दी कोड, जब तक तुम इस फोल्डर में काम करोगे, कि इस फाइल को पर्टिकुलरली ट्रैक करना है, तो हमें गिट को बताना होता है कि कौन कौन सी फाइल्स को हमें ट्रैक करना होता है। तो ये एक बेनिफिट है, क्योंकि तो तुम्हारे जो भी प्रोजेक्ट होगा उसमें कुछ ऐसी फाइल्स होती है जो जिन्हें तुम ट्रैक नहीं करना चाहते। जैसे अगर तुम्हारा कोई पासवर्ड जो है वो सेव्ड है, तुम्हारा कोई पासवर्ड फाइल है जो सेव है, वो तुम मतलब गलती से पुश नहीं करना चाहते, तो तुम उसे ऐड नहीं करोगे स्टेजिंग एरिया में। तो अनट्रैक्ड फाइल्स को स्टेजिंग एरिया में लाने के लिए, ताकि गिट उनको ट्रैक कर पाए, उन पे जो चेंजेस होंगे, हम कहते हैं गिट ऐड फाइल का नाम, गिट ऐड इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। ठीक है, अब स्टेटस देखते हैं। अब हमने इसको ऐड कर दिया है, तो मतलब अब इस फाइल पे जो चेंजेस होंगे वो गिट ट्रैक करेगा। तो इसके बाद अगला स्टेप क्या होता है, बेसिकली अगला स्टेप सिंपल होता है, इसको कमिट करना है। मतलब हमें गिट की हिस्ट्री में बताना है कि हमने इस मोमेंट पे एक फाइल बनाई है। तो सिंपल होता है गिट कमिट, और कमिट के साथ एक फ्लैग पास होता है, वो ज़रूरी होता है डैश एम। तो डैश एम का मतलब होता है मैसेज। तो मैसेज ज़रूरी किस लिए है, मैसेज ज़रूरी इसलिए होता है ताकि तुम जब बाद में जब तुम्हारा प्रोजेक्ट ग्रो कर जाएगा, तो तुम बाद में देखो कि किस कमिट पे तुमने कौन सी फाइल किस कमिट पे ऐड करी और उसका पर्पस क्या था। तो जैसे इस जो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है, इसका पर्पस क्या है और मैं इसे कमिट क्यों कर रहा हूँ, तो मैं उस मैसेज में बताऊंगा कि मैंने इसे कमिट क्यों किया। जैसे अगर मान लो तुमने कोई फाइल्स बनाई है जिसपे कुछ नया फीचर ऐड हो रहा है, तो तुम जब उन फाइल्स को कमिट करोगे तो तुम उस गिट कमिट में उसका डिस्क्रिप्शन दोगे कि ये नए फीचर आ रहे हैं जाकि ताकि और जो कोलैबोरेटर्स तुम्हारे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं उनको पता लग जाए कि किस पॉइंट पे तुम्हारी रिपोजिटरी में क्या फीचर्स ऐड हुए हैं। तो ये तो बहुत ही ट्रिवियल एग्जांपल है, और जब ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करोगे तब और ज़्यादा समझ आएगा। तो गिट कमिट डैश एम जो मैसेज का फ्लैग है, तो डबल कोट्स में तुम्हारा मैसेज इंडेक्स फाइल क्रिएटेड। ठीक है, अब देखते हैं हमारी गिट रिपोजिटरी का स्टेटस क्या है। तो नथिंग टू कमिट, वर्किंग ट्री क्लीन, मतलब जो हमने फाइल्स एडेड करी थी वो हमने गिट की कमिट हिस्ट्री में ऐड कर दी हैं, तो इसलिए आ रहा है कि नथिंग टू कमिट, वर्किंग ट्री क्लीन। अब एक और कमांड होती है जिससे तुम्हें पता लगता है कि कौन कौन से कमिट सीक्वेंशियली क्रोनोलॉजिकली कौन कौन से कमिट किस टाइम पे हुए हैं। तो उसके लिए कहते हैं गिट लॉग। तो ये कमिट का एक हैश है जो गिट क्रिएट होता है। ठीक है, कमिट का हैश है। ऑथर कौन है, ऑथर मेरा नाम है, और क्या कमिट का जो मैसेज है वो यहाँ पे हमें सीन हो रहा है कि इंडेक्स फाइल क्रिएटेड। तो इससे तुम्हें पता लग जाएगा कि किस मोमेंट पे कौन सी फाइल ऐड की है। तो इससे क्या होता है, बग ट्रैकिंग, जहाँ पे कुछ अगर बग्स आ रहे हैं उनको ट्रैक करना बहुत आसान हो जाता है गिट लॉग से। तो गिट का ये बहुत अच्छा यूज है, इससे तुम बग ट्रैकिंग आसान हो जाती है। तो तुम्हारा जब प्रोजेक्ट ग्रो करता है तो मेंटेन करना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, अब क्या होता है, अगर तुमने ये अपनी लोकल पे बनाई है गिट रिपोजिटरी, अब तुम्हें गिटहब पे अपनी पुश करनी है। तो गिटहब पे पुश करने के लिए तुम क्या करोगे,
तो अभी मुझे अपनी गिटहब प्रोफाइल पे भी एक रिपोजिटरी बनानी होगी, बना ही देता हूँ। ये मैंने बेसिक गिटहब पे अपनी एक रिपोजिटरी बना दी। तो गिटहब ने मेरे को बताया कि मुझे ये स्टेप्स फॉलो करने होंगे। तो अगर अगर तुमने पहले गिटहब पे बनाई है और फिर तुम अपने लोकल पे बना रहे हो, तो तुम्हें ये सब स्टेप्स फॉलो करने हैं। गेट इनिट जो मैंने बताया था, मतलब गेट इनिट जो इनिशियलाइज करने के लिए, पर हमने इनिशियलाइज पहले ही कर दी है। तो हमें क्या करना है, हमें जो हमारी एग्जिस्टिंग लोकल पे जो रिपोजिटरी है उसे पुश करना है गिटहब पे। तो पहले हमें ओरिजिन ऐड करना होगा, दिखाता हूँ। तो ये कमांड देखो, गिट रिमोट। तो मैं गिट को बता रहा हूँ कि जो मेरा रिमोट रिपोजिटरी है जो गिटहब पे जो है वो हमारी रिमोट है। तो रिमोट में बोल रहा हूँ कि हमें एक URL ऐड करना है जो हमारा ओरिजिन होगा। मतलब जैसे जो तुम्हारा तुम्हारे लोकल कंप्यूटर पे जो फाइल्स हैं वो तुम कहीं पे पुश करोगे, ताकि दूसरे बंदे कोलैबोरेट कर पाए तुमसे और तुम्हारा कोड देख पाए। तो जिस URL पे तुम पुश करोगे, हमें गेट को बताना होगा कि इस URL पे हम पुश करेंगे। तो उस URL, ये जो URL है, ये git@github.com, ये मेरा URL है जिस पे मैं पुश करूँगा ताकि दूसरे कोलैबोरेटर्स मेरा कोड देख पाए। तो गेट रिमोट ऐड ओरिजिन की जगह ऐड ओरिजिन की जगह तुम कोई भी नेम यूज़ कर सकते हो। ये कन्वेंशन है कि ओरिजिन यूज़ करते हैं, तो मैं भी ओरिजिन यूज़ करता हूँ। तो ओरिजिन का मतलब कि जो मेरी होगी, मतलब जो मैंने ये रिपोजिटरी क्रिएट कर रहा हूँ वहाँ पे मैं पुश करूँगा। तो गेट रिमोट ऐड ओरिजिन, और ये मेरा URL एंटर। एक मिनट, रिमोट ओरिजिन ऑलरेडी एग्जिस्ट। मुझे लगता है कि ज़्यादा लोगों को पता नहीं है, पर गिटहब ने मतलब पहले क्या होता था, जो तुम्हारी डिफ़ॉल्ट ब्रांच होती थी गिट रिपोजिटरी में, वो मास्टर होती थी। तो गिटहब ने अब तो जैसे तुम स्क्रीन पे देख रहे हो वो चेंज करके मेन कर दिया है। ओरिजिन मेन। तो जैसे देखा कि गिट पुश सेट अपस्ट्रीम, तो मैंने पुश कर दिया जो मैंने रिपोजिटरी बनाई थी गिटहब पे, अपना लोकल का कोड जो मैंने अपने कंप्यूटर पे है। तो गिट पुश सेट अपस्ट्रीम का मतलब क्या है कि मैं गिट को बता रहा हूँ कि जो मेरा एक तो मेरा ये जो मेरी मशीन है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, उस पर स्टोर होगा, और इंटरनेट पे कहाँ पे स्टोर होगा मेरा अपस्ट्रीम जहाँ पे मैं पुश करूँगा वो कहाँ पे होगा। तो मैंने गेट को बताया कि गेट पुश जब भी मैं पुश करूँगा, अगर मैं तो यहाँ पे पुश करूँगा ओरिजिन मेरा ये वाली रिपोजिटरी जो जहाँ पे मेरा कर्सर घूम रहा है अभी, जो मैंने बनाई थी,
ओरिजिन, और ओरिजिन की कौन सी ब्रांच पे, ओरिजिन की मेन ब्रांच पे। यहाँ पे मेन आ गया, यहाँ पे हमारी जो इंडेक्स फाइल थी वो क्रिएट हो गई। तो अब जैसे तुम इसको देख रहे हो, यहाँ पे जो कमिट का जो मैसेज आ रहा है, तो मतलब लेटेस्ट कमिट का जो मैसेज आता है वो आता है। तो लेटेस्ट कमिट हमारा क्या था, इंडेक्स फाइल क्रिएटेड, ठीक है। तो गिट पुश सेट अपस्ट्रीम ओरिजिन मेन। तो ये हमने एक रिपोजिटरी, अब हमने अभी तक एक रिपोजिटरी बना दी और हम गिटहब से ट्रैक कर रहे हैं वो। तो अब क्या होता है, जैसे मान लो, जैसे अब इस रिपो में तुम चेंजेस कर रहे हो, तो कुछ डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस होती हैं जो रेकमेंडेड होती हैं। तो क्या होता है कि जैसे अगर तुम कोई नया फीचर ऐड कर रहे हो, तो नया फीचर ऐड करने के लिए हमेशा एक नई ब्रांच पे होता है, ताकि जो तुम्हारा एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है, अगर तुम्हारे नए फीचर में कुछ बग्स आए, तो जो प्रोजेक्ट तुम्हारा जो वर्किंग है, जो चल रहा है, उस पर कुछ इफेक्ट नहीं आना चाहिए। तो इसलिए जो भी तुम्हारा फीचर होता है वो तुम एक अपनी अलग ब्रांच पे चेक करते हो, टेस्ट करते हो, फिर उसको मेन ब्रांच में मर्ज करते हो। तो अगर एक नई ब्रांच बनानी है, उससे पहले अगर देखना हो कि हाँ तुम्हारे पास कितनी ब्रांचेज हैं, तो गिट ब्रांच अभी तक एक ही ब्रांच है, क्योंकि जो बाय डिफ़ॉल्ट है वो हमारी मेन है। ये आज ही हुआ है, पहले ये जो ब्रांच होती थी ये मास्टर होती थी, इन्होंने नाम चेंज कर दिया, ठीक है। तो नई ब्रांच बनानी है हमें। नई ब्रांच कैसे बनाएंगे, गिट ब्रांच ठीक है। अब देखते हैं अब कितनी ब्रांचेज हैं। गिट ब्रांच 2 ब्रांचेज है, मेन है, न्यू है। अब जैसे तुमने देखा होगा यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन, यहाँ पे देखो ये रिप्रेजेंटेशन आई है मेन मेरा हाईलाइटेड है ग्रीन कलर में और उसके आगे स्टार है। तो गिट हमें बता रहा है कि अभी हम करंट ब्रांच जो है हमारी वो है मेन, और हम मेन ब्रांच में हैं। अब तुम्हें फीचर पे काम करना शुरू करना है, तो तुम्हें अपनी ब्रांच चेंज करनी होगी। तो ब्रांच कैसे चेंज करेंगे, गिट चेकआउट न्यू। तो तुम गिट को बता रहे हो कि मुझे ब्रांच चेंज करनी है, तो गिट चेकआउट न्यू, तो मुझे न्यू ब्रांच पे जाना है, मुझे उस ब्रांच पे जाना है जिसका नाम न्यू है, न्यू। तो स्विच टू ब्रांच न्यू। अब देखते हैं गिट ब्रांच हमारी क्या न्यू है। अब फाइल देखते हैं, फाइल सेम ही है, देखो फाइल्स भी पूरी सेम है, फाइल्स पूरी सेम है, कुछ डिफरेंस नहीं है। तो इससे क्या होगा कि अगर मान लो तुम्हारा मेन पे जो है वो वर्किंग कोड है, तो वो पूरा वर्किंग कोड जो होगा वो आ जाएगा तुम्हारी एक अलग ब्रांच पे। तो उसी ब्रांच पे तुम काम करना शुरू कर दोगे, तो इससे जो तुम्हारा वर्किंग प्रोजेक्ट है उस पर कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और अगर ये जैसे मैंने 2 स्टेप में किया कि पहले मैंने एक ब्रांच बनाई है, फिर उसे चेकआउट किया है, तो ये अगर एक ही स्टेप में करना हो तो एक शॉर्टकट है गिट चेकआउट डैश बी। चेकआउट का मतलब चेकआउट, वो हमें ब्रांच चेकआउट करनी है। डैश बी होता है फ्लैग होता है ब्रांच का, तो डैश बी मतलब ब्रांच। तो इससे क्या होगा, एक नई ब्रांच चेक बन जाएगी और उसी पे चेकआउट हो जाएगी। मतलब हमें अलग से ये कमांड नहीं देनी होगी। तो गेट चेकआउट डैश बी, ब्रांच का नाम, जो नई ब्रांच बनानी है उसका नाम। तो अब स्विच टू अ न्यू ब्रांच, न्यू वन। तो अब देखते हैं हमारी टोटल ब्रांचेस कितनी हैं। मेन न्यू वन, ठीक है। कोई डाउट है? तो ये तो बहुत ही बेसिक है। अब देखते हैं कि अगर कोई ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है बहुत टाइम से चला रहा है, तो तुम उस पर कंट्रीब्यूट कैसे करोगे। ये मतलब बहुत बेसिक है, ठीक है। अभी मैं जैसे जैसे आगे चलेगा मैं बताता रहूँगा कि और क्या क्या प्रैक्टिसेस फॉलो करनी होती हैं। जैसे ये रिपोजिटरी है फोर्सेशिया की ओपन इवेंट सर्वर। तो ये क्या है, ये एक ओपन सोर्स ऑर्गेनाइजेशन है फोर्सेशिया, उनकी एक रिपोजिटरी ओपन इवेंट सर्वर। तो अब मान लो तुम्हें इस रिपोजिटरी में इस प्रोजेक्ट पे कंट्रीब्यूट करना है अपना कोड, तो तुम्हें स्टार्ट करना पड़ेगा कि कोड समझने से पहले, मतलब तुम्हें कंट्रीब्यूट कैसे करना है। अगर तुम्हें मान लो इसमें कंट्रीब्यूट करना है तो कैसे स्टार्ट करो। तो सबसे पहले सबसे बेस्ट तरीका होता है कि इश्यूज़ में जाओ, ठीक है। इश्यूज़ पढ़ो इनके,
इश्यूज कोई भी एक पिक कर लो, मतलब जैसे देखो, जैसे मान लो मैंने ये इशू खोला, ये इशू खोल दिया। अब क्या है, इन्होंने जिस बंदे ने ये इशू ओपन किया उसने इशू का डिस्क्रिप्शन दिया कि क्या इशू आ रहा है, तो इसको पढ़ो। अगर तुम्हें समझ आ रहा है, जैसे इसमें पूरा डिस्क्रिप्शन दे रखा है और इसमें कि सी दिस फॉर रिमेनिंग क्राइटेरिया टू बी इम्प्लीमेंटेड एंड यूज्ड, तो इसमें बताया हुआ है कि इस इशू का रेफरेंस मतलब ये वाला इशू इस इशू से कनेक्टेड है। तो अगर ये समझ में आ रहा है तो इसके इस इशू पे काम करना शुरू कर दो। तो सबसे पहले होगा कि हमें डायरेक्ट, क्या होता है ओपन सोर्स ऑर्गेनाइजेशन में, हम डायरेक्ट इस पे पुश नहीं कर सकते, हमारे पास राइट्स नहीं होते कि तुम डायरेक्ट फोर्सेशा पे करोगे। तो सबसे बेसिक है कि तुम फोर्क करोगे इसको। फोर्क का मतलब होता है कि तुम इसी की एक कॉपी अपनी रिपो में बना रहे हो। तो मैंने बनाई हुई है, तो अगर तुम फोर्क करोगे तो तुम्हारी रिपो में आ जाएगी इस प्रोजेक्ट की कॉपी। तो मैं अब नीचे लिखा हुआ है कि फोर्क फ्रॉम फोर्सेशा ओपन इवेंट सर्वर, ठीक है। अगर तुम फोर्क करोगे तब तुम्हारे नीचे तुम्हारी प्रोजेक्ट नेम के नीचे भी लिखा आएगा। तो फोर्क कर लिया, अब क्या करोगे, तुम इसे यहाँ पे जाओगे और क्लोन करोगे। क्लोन यहाँ पे तुम क्लिपबोर्ड पे तुम्हारे कॉपी हो जाएगा। अपने टर्मिनल या कमांड प्रॉम्प्ट पे जाओगे तुम, गिट क्लोन, मतलब अगर कभी भी किसी दूसरे प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट करो तो उसे फोर्क कर लेना पहले। तो फोर्क करने के बाद अब तुम्हें अपनी लोकल मशीन पे उसका कोड चाहिए सारा, ताकि तुम कोड पढ़ पाओ और उस इशू पे काम करना शुरू कर पाओ। तो तुम क्या करोगे, गिट क्लोन। क्लोन का मतलब कि तुम इस रिपोजिटरी को उठा रहे हो, इस रिपोजिटरी का कोड डाउनलोड करो, मतलब एक सिंपल भाषा में डाउनलोड कर लो। पर डाउनलोड और क्लोन में फ़र्क होता है। तो गिट क्लोन, जो तुम्हारी फोर्क रिपो है उसका यूआरएल तुम यहाँ पे दोगे, तो गिट क्लोन ये, ठीक है। तो अब मैं एंटर मारूंगा तो ये रिपो मेरे लैपटॉप पे आ जाएगी। ये आ रखी है मैंने पहले ही कर रखा है। अब गिट क्लोन से क्या होता है, गिट क्लोन से होता है, ठीक है, ये सारी फाइल्स आ गई। अब गिट अगर तुम डाउनलोड करते तो एक फाइल मिसिंग होती, मिसिंग मतलब एक फाइल होती, जैसे फाइल तो होती हो, जैसे कौन सी फाइल थी, जब हमने गिट इनिशियलाइज जब किया था तो एक डॉट गिट फाइल बनी थी, ठीक है, डॉट गिट फाइल है इधर। तो जब अगर तुमने इस रिपो को डाउनलोड किया होगा फोर्क करके, यहाँ पे डाउनलोड कर लिया होगा सीधा यहाँ पे, तो जो उस प्रोजेक्ट पे फर्दर चेंजेस हो रहे होते हैं ना, तुम उन्हें अपने लोकल पे तुम पुल नहीं कर पाते, मतलब उन्हें डाउनलोड नहीं कर पाते। तो गिट क्लोन, अब क्या होता है, गिट क्लोन करने के बाद तुम्हें, जैसे हमने एक ओरिजिन डिफाइन किया था जब मैं पिछली रिपो में दिखाया था कि ओरिजिन डिफाइन किया जहाँ पे मैं पुश करूँगा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि अपना कोड भी पुश करना है, अपना कोड भी पुश करना है, और उस रिपोजिटरी पे जो चेंजेस हो रहे हैं लगातार वो भी हमें पुल करने हैं, ठीक है। तो हमें पहले बताना होगा कि हमारा ओरिजिन क्या है, मतलब हमें पुश का करना है और पुल कहाँ से करना है। तो उसके लिए क्या होता है कि अगर तुम्हें बताना है कि अब जैसे तुमने क्लोन किया है, तो जो हमारा वो होगा, जो हमारा ओरिजिन होगा वो पहले से डिफाइन हो जाएगा, क्योंकि तुमने क्लोन ही वहीं से किया। तो ओरिजिन, ये देखो ओरिजिन पे देखो मेरा नाम आ रहा है प्रोग्मेटिक 19 है, मतलब मेरा यूजर नेम आ रहा है, मतलब ये ओरिजिन है। इस पे मैं पुश करूँगा, यहाँ पे ब्रैकेट में पुश लिखा हुआ है। अब अपस्ट्रीम क्या है, अपस्ट्रीम वो है जहाँ से मैं जो ओरिजिनल प्रोजेक्ट है उसमें जो चेंजेस हो रहे हैं वो मैं कहाँ से फेच करूँगा। वहाँ पे देखो उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम आ रहा है फोर्सेशा। तो ये डिफाइन कैसे करते हैं, ओरिजिन मैंने बताया कि तुम्हारा क्लोन किया है तो अपने आप ही डिफाइंड होगा। अपस्ट्रीम कैसे डिफाइन करोगे तुम, गेट रिमोट, सेम है ऐड अपस्ट्रीम, ठीक है। अब जो जहाँ से तुमने फोल्ड किया उसका यूआरएल उठाना है, अपनी जो फोल्ड रिपो है तुम्हारी प्रोफाइल में उसका नहीं उठाना है, फोर्सेशा इसका उठाना है। तो इसका कोड में जाओ, यहाँ पे इसका एक क्लिपबोर्ड पे कॉपी करो और चिपका दो यहाँ पे,
ठीक है, अब क्या होगा कि गिट को पता चल रहा है कि हाँ भाई मैं यहाँ से पुल करूँगा। ठीक है, एक मिनट दिखा देता हूँ पुल कैसे होता है। अब मुझे ब्रांच चेंज करनी है अपनी मुझे। ठीक है, अब मेरे को पुल करना है, अपस्ट्रीम से पुल करना है, मतलब जो ये मेरी ये रिपोजिटरी जो ओरिजिनल रिपो है वहाँ से पुल करने हैं मुझे चेंजेस। तो मैं क्या करूँगा, गिट पुल अपस्ट्रीम। अब अपस्ट्रीम पे जो है ये मेरी ये वाली ब्रांच है, अपस्ट्रीम मेरे को पता है, गिट को पता है कि ये है, पर गिट को ये नहीं पता कि अपस्ट्रीम की कौन सी ब्रांच। इस पे देखो डेवलपमेंट है ब्रांच, जीएस पे जैसे मास्टर है, तो अब अपस्ट्रीम को ये नहीं पता कि इन तीनों में से कौन सी ब्रांच उठाए वो, तो मुझे गिट को बताना होगा। गिट पुल अपस्ट्रीम जो तुम्हारा यूआरएल है फोर्क रिपो का जो ओरिजिनल रिपो है, और तुम्हें उसकी ब्रांच बतानी है, तो गिट पुल अपस्ट्रीम डेवलपमेंट। ठीक है, ये देखो ये जो ओरिजिनल रिपो में जो मतलब अकेला ये बहुत मतलब ये इस रिपो पे और बंदे भी कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे, तो मैं अकेला तो हूँ नहीं, तो उन सब के चेंजेस भी अब मेरे पास आ गए हैं अपनी लैपटॉप पे। ठीक है, तो अब मेरे पास वर्किंग प्रोजेक्ट भी है और मेरे पास वो भी है जिस इशू पे मैं काम कर रहा हूँ, मतलब ये मेरा वर्किंग प्रोजेक्ट है जो ब्रांच जो उस ब्रांच पे डेवलपमेंट ब्रांच पे। अब मान लो कि मुझे किसी इशू पे काम करना है, तो मैंने जैसे बताया कि हमेशा एक नई ब्रांच बनानी चाहिए अगर तुम्हें किसी इशू पे काम करना है। तो मैं क्या करूँगा, नई ब्रांच मेरी बनी हुई है, गिट चेकआउट, मैं उस पर चेकआउट कर दूँगा। ठीक है, तो ये जो ब्रांच की ये जो नई मेरी ब्रांच है जिस पे मैं इशू को फिक्स करूँगा, वो ये मतलब ये नेमिंग कन्वेंशन पाइथन पाइथन में होता है कि तुम जब चलो बाद में बताता हूँ, अभी काम करने अभी देखते हैं। अब जैसे मैंने बोला कि तुमने इशू पिक कर लिया, तुमने फोर्क भी कर ली, तुमने अपस्ट्रीम ऐड कर दिया, तुमने गिट को बता दिया कि मैं कहाँ पुश करूँगा कहाँ पुल करूँगा। अब मान लो तुमने इशू पे पढ़ना स्टार्ट किया, तुमने इशू उठा लिया, ये इशू नंबर 7321। ठीक है, अब तुम पीआर कैसे भेजोगे इस पे? पीआर होती है पुल रिक्वेस्ट, मतलब पुल रिक्वेस्ट होती है तुमने ये जो इशू है आइडिया 7321 इसको तुमने सॉल्व कर लिया और अपना कोड ऐड कर दिया, तो अब तुम्हें चाहिए कि जो ओरिजिनल रिपो हमारी ये है, ये फोर्सेशिया, इस पे तुम्हारे चेंजेस एक्सेप्ट हो जाएं। तो उसको एक्सेप्ट कराने के लिए हमें एक पीआर डालनी होती है। पीआर का मतलब होता है पुल रिक्वेस्ट। तो जैसे मेरी ये ब्रांच है फिक्स इशू 7, तो मैंने इस पे अपने चेंजेस कर दिए हैं फिक्स इशू 7097 पे। तो अब मैं इसको अपनी रिपो पे पुश करूँगा जो मेरी फोर्ड रिपो है। ठीक है, तो मैंने इसको गिट पुश ओरिजिन, और मेरी ओरिजिन जो है उसकी किस ब्रांच में पुश करूँगा, उसकी मैं इस फिक्स इशू 7097 ब्रांच में पुश करूँगा अपना कोड। ठीक है, एंटर मार दूंगा, तो मैंने ये कर रखा है तो मैं एंटर नहीं मारूंगा। तो जो मेरे चेंजेस होंगे अब वो मेरी फोर्ड रिपो पे चले जाएंगे। अब अपनी मेरी फोर्ड रिपो देख रहे हैं। ठीक है, मैंने वो अब देखो डेवलपमेंट ब्रांच है हमारी फिक्स इशू 7097, जो मैंने ब्रांच अभी पुश करी थी अपनी फोर्ड रिपो। ये मेरी फोर्ड रिपो है, इसमें मैंने अपनी ब्रांच पुश करी जिसमें मैं इशू को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैंने ये पुश कर दिया, ये जैसे अब तो यहाँ पे आ जाएगा दिस ब्रांच इज 1 कमिट अहेड 15 कमिट्स बिहाइंड। तो जब भी तुम पुश करोगे तो तुमने कमिट ऐड करे होंगे, मतलब कोड में चेंजेस किए होंगे, उनको कमिट किया होगा। तो इसलिए दिखा रहा है कि मेरी जो ब्रांच है ये फिक्स इशू वो 1 कमिट अहेड है, बिहाइंड फॉर 1 कमिट अहेड है और 15 कमिट पीछे है। मतलब जो 15 नए चेंज हुए वो मैंने अपनी ब्रांच में ऐड नहीं किए हैं, पर मेरी ब्रांच में एक ऐसा चेंज है जो अहेड है किस रिपो के, फोर्सेशिया, और उसकी कौन सी ब्रांच, डेवलपमेंट ब्रांच की। अब यहाँ पे तुम्हें ऑप्शन आ रहा है कि पुल रिक्वेस्ट, तो तुम पुल रिक्वेस्ट पे क्लिक करोगे, मैं दिखाता हूँ। ठीक है,
मैंने पुल रिक्वेस्ट ऑलरेडी डाल रखी है। ओके, मेरी पुल रिक्वेस्ट मर्ज हो गई है, मुझे पता भी नहीं चला और मर्ज हो गई। वाह, ठीक है। अब ये तो मैंने कर रखी है, चलो इस पे तो मर्ज हो गया। अब मैं क्या दिखाऊं तुम्हें, अभी दूसरी, 1 मिनट रुको। तो ये जैसे पता होगा कि हमने हैक्टोबर फेस्ट की एक रिपो बनाई है जिसमें तुम अपना सीपी का कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के एल्गोरिथम्स या क्वेश्चंस तुम अपलोड कर सकते हो। तो मैंने इशू बनाया, जैसे अभी तो हम जो मैंने तुम्हें दिखाया कि वो इशू पहले से बना हुआ था उस रिपो पे, तो उस पर तुम पीआर डालते। अब जैसे तुमने कोई बग देख लिया कोड में, तो तुम्हें, और वो बग डिफाइंड नहीं है किसी इशू में, तो तुम्हें एक नया इशू बनाना होगा। नया इशू यहाँ से बनाते हैं। तो जैसे मेरे को इस रिपो पे, हैक्टोबर फेस्ट की रिपो पे कि देखा कि इसमें तो CSES के प्रॉब्लम सेट के सोल्यूशन ही नहीं है, तो मैंने एक नया इशू बना दिया कि एडिंग सोल्यूशंस ऑफ CSES प्रॉब्लम सेट, ठीक है। और मैंने कमेंट में डाल दिया कि इस इशू पे मैं काम करूँगा, ठीक है। अब देखो, अब मैंने अब मेरी पुल रिक्वेस्ट भी आ गई, एडेड CSES सोल्यूशन। तो पुल रिक्वेस्ट मैंने बता दिया कैसे करनी है, वहां से मैंने पुल रिक्वेस्ट डाल दी। और पुल रिक्वेस्ट में मैंने क्या किया कि इशू का नंबर डिफाइन कर दिया। तो इशू का नंबर, जैसे अगर तुम फिक्सेस, रिजॉल्व्स, ये कीवर्ड डिफाइन करोगे ना, फिक्सेस, रिजॉल्व्स, और उसके बाद हैशटैग 95 जो इशू नंबर है, देखो हैशटैग 95 के वो इशू आ रहा है जो मैंने इशू बनाया था एडिंग सोल्यूशन। तो ये क्या करता है, जब मेरी पुल रिक्वेस्ट जो होगी मर्ज हो जाएगी, ये पीआर जब मेरी मर्ज हो जाएगी, तो वो इशू जो होगा ना, ये इशू ये अपने आप ही क्लोज हो जाएगा। तो इससे फायदा क्या होता है, इससे फायदा होता है मेंटेनेंस को, जो प्रोजेक्ट मेंटेन कर रहे हैं उन्हें मैन्युअली इश्यूज क्लोज नहीं करने पड़ते। और इससे एक फायदा होता है नए कंट्रीब्यूटर्स को। मान लो तुम नया आए हो और तुमने किसी इशू पे काम करना शुरू कर दिया और तुमने सॉल्व कर दिया, फिर तुम्हें बाद में जाके पता लगता है कि वो इशू तो पहले से ही मतलब सॉल्व हो चुका है, वो उसकी पीआर डाली दूसरे बंदे ने डाल दी है, तो तुम्हारा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि बंदों को फायदा रहता है मतलब मेंटेन करने में, और नए बंदों को फायदा रहता है कि कौन सा इशू अवेलेबल है और कौन सा इशू सॉल्व है। तो जैसी मेरी ये पीआर मर्ज होगी, वो इशू अपने आप ही क्लोज हो जाएगा। तो ये तो बहुत मतलब बेसिक है कि ओपन सोर्स का वर्क फ्लो कैसे करता है। मतलब ये मतलब जो मैंने अभी तुम्हें बताया ना कि कैसे इशू क्रिएट करते हैं, कैसे अपनी फीचर ब्रांच को नेम करते हैं, ये मतलब हर ओपन सोर्स ऑर्गेनाइजेशन में सेम रहता है। चाहे तुम GSOC के लिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उठा लो, उनमें भी यही रहेगा सेम। ये बेसिक तो सेम रहेगा, इसके ऊपर जो होता है वो उनका थोड़ा बहुत अलग होता है। तो अब देखने की किसी ओपन सोर्स ऑर्गेनाइजेशन में तुम्हें कैसे कंट्रीब्यूट करना है। तो सबसे पहले क्या होता है, कोई एक ओपन सोर्स ऑर्गेनाइजेशन पिक उठाई तुमने, अब तुम्हें पता कैसे लगेगा कि कौन सी ओपन सोर्स ऑर्गेनाइजेशन अवेलेबल है। सबसे बेसिक तो ये गिटहब के एक्सप्लोर पे जाओ, वहाँ पे बहुत सारी रिपोजिटरीज आ जाएंगी जो तुम्हें, जैसे अगर तुम्हें पाइथन आती है तो पाइथन की रिपोजिटरी चेक कर लो, अगर कुछ जावास्क्रिप्ट आती है तो उसकी। पर अगर तुम्हें मतलब जैसे, और ये भी बहुत अच्छा है कि यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन, ये वो ऑर्गेनाइजेशन हैं जो गूगल समर ऑफ कोड में इस साल एक्सेप्ट हो चुकी हैं। तो अगर तुम्हें इनमें कंट्रीब्यूट करना है तो यहाँ से देख लो कि हाँ कौन कौन सी समर ऑफ कोड में एक्सेप्ट हुई हैं, ठीक है। और ये मतलब कुछ बता देता हूँ जो मतलब हर साल ही एक्सेप्ट होती हैं। तो मतलब तुम्हारा ऐसा नहीं होगा कि अगर तुमने कंट्रीब्यूट करना अभी से शुरू कर दिया और फिर तुमने बाद में सोचा कि GSOC के लिए इसी में अप्लाई करूँगा, तो ये सेलेक्ट ही ना हुई। ऐसा भी हो जाता है कभी कभी। तो मैं कुछ बता देता हूँ जो हर साल ही सिलेक्ट हो रही हैं। एक मिनट, डेबियन है वो हर साल आती है, जेंगो हर साल से सेलेक्ट होती है, फेडोरा हर साल होती है, और गिट जो हम यूज़ कर रहे हैं, अगर गिट में कंट्रीब्यूट करना हो उसमें करो, मतलब जो तुम यूज़ कर रहे हो उसी में तुम कंट्रीब्यूट कर रहे हो। मतलब तुमने कोई फीचर बनाया उसके बाद खुद ही तुम वो फीचर यूज़ कर रहे हो, मज़ा ही आ जाएगा। ठीक है।
जीसीसी हर साल आती है, ठीक है। इंकस्केप भी देखा है मैंने हर साल। ठीक है, एक मिनट, दो तीन और बता रहा हूँ फिर आगे बढ़ते हैं। मोजिला, मोजिला मोजिला ओपन सी भी हर साल आती है। ओपिया ओपिया हर साल आती है। ओ ओआस हर साल। पाइथन, पाइथन की हर साल आती है। तो यहाँ से इनके प्रोजेक्ट देख लेना, इनकी आइडिया लिस्ट पे चले जाना, ठीक है। मैं ज़्यादा इस पर डीप पे नहीं जा रहा। अब मैंने ये रिपो पिक करी है, तो मैं इसके मतलब कैसे मतलब कैसे मूव फॉरवर्ड करूँगा। तो वो तो मैंने बता दिया बेसिकली कि इशू सॉल्व करना है। पर उससे पहले थोड़े बहुत स्टेप्स जो होते हैं वो कर। तो क्या होता है कि मतलब अगर तुम्हें कोड बेस समझना है, इसका कोड बेस समझना है, ये सब कोड तुम्हें समझना है कि ये क्या है, क्यों है ये। तो सबसे होता है कि रीडमी में जाओ। रीडमी डॉट एम डी में सब कुछ दिया होता है। जैसे इसने दिया एपीआई डॉक्यूमेंटेशन। एपीआई मतलब ये ओपन इवेंट सर्वर, नाम से पता चल रहा होगा कि ये सर्वर है। तो इस सर्वर का जो एपीआई है उसकी मतलब उसको कैसे यूज़ करूँगा मैं, ठीक है। तो कंट्रीब्यूट करने से पहले तुम्हें थोड़ी बेसिक चीज़ें जो होते हैं वो समझ आ जानी चाहिए मतलब। तो मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ कोई इशू उठाता हूँ पहले, थोड़ा मतलब इशू था जिसका मुझे ऐसा लगे कि हाँ मैं कर सकता हूँ। तो सबसे पहले मैंने कैसे स्टार्ट किया था, मैंने डॉक्यूमेंटेशन में चेंजेस किए थे। इसकी जो डॉक्यूमेंटेशन है उसमें चेंजेस किए थे मतलब। तो बेसिक चेंजेस किए डॉक्यूमेंटेशन में। उसके बाद मैं कोड कोड चेंजेस करने शुरू किए मैंने, ठीक है। तो ये इसमें बताया हुआ है कि जो एपीआई है उसकी डॉक्यूमेंटेशन ये है। कम्युनिकेशन, तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि अगर तुम्हें कोई रिपोजिटरी से कोई रिपोजिटरी स्पेसिफिक डाउट है, जैसे इंस्टॉल नहीं हो रही तुम्हारी लैपटॉप पे रिपोजिटरी, जो स्टेप्स लिखे हैं इन्होंने प्रोवाइड किए हैं उस पर उस वो नहीं हो रहा। तो इनके जैसे इनका चैट चैनल है गिटर पे तुम जाओ, गिटर पे ज्वाइन कर लो इनका चैट चैनल, ठीक है। इनकी मेलिंग लिस्ट ज्वाइन कर लो। मेलिंग लिस्ट मतलब तुम्हारे मतलब अगर कुछ जीमेल है याहू है उसी पे इनके डिस्कशंस की मेलिंग लिस्ट आती रहेगी। तो जैसे मैंने ज्वाइन कर रखा है ओपन इवेंट सर्वर, तो ये ज्वाइन कर लिया तुमने, ठीक है। अब अब क्या होता है, जैसे हमने क्लोन कर लिया। क्लोन करने के बाद इसको मतलब इस रिपोजिटरी के साथ तुम्हें खेलना पड़ेगा समझने के लिए। तो तुम खेलना शुरू कैसे करते हो, तुम्हें इंस्टॉल करना पड़ेगा पहले। Shubham, you're on mute if you're saying something. Okay, so till then, let me show you the repository and tell you about the naming conventions in which many of you are lagging behind.
Hello, am I audible? Hello, am I audible? Okay, so let me show you the repository. Yeah. Yeah, so here as you can see, there are folders regarding the algorithms, contest, data structures, important interview questions, and interview bit questions, lead code questions, code chef, and other. As you can see, you can make your own folders regarding the web on the respective website. मतलब अगर तुम कोई न्यू वेबसाइट पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो तुम उसका भी बना सकते हो. एल्गोरिदम के अंदर तुम्हें जो मतलब एल्गोरिदम्स एग्जिस्ट करती हैं, अगर एक से ज़्यादा एक टॉपिक पे एल्गोरिदम्स हैं तो उनका एक फोल्डर बना के उसके अंदर एल्गोरिदम्स डालनी है लाइक दिस. एंड हर किसी के अंदर स्पेस की जगह हाइफन का यूज करेंगे हम. एंड अंडरस्कोर लैंग्वेज नेम. हेलो, जस्ट वेट. या सो आई वाज सेइंग दैट कि यहाँ पे अगर स्पेस हमें देना है, फाइल का पहला अल्फ़ाबेट कैपिटल रहेगा एंड बीच में स्पेसेस की जगह हम हाइफन का यूज़ करेंगे. अंडरस्कोर यूज़ करेंगे लैंग्वेज नेम बताने के लिए. एक्सटेंशन का मैटर नहीं करता क्योंकि यार अगर आगे जाके मतलब ये रिपॉजिटरी जैसे अभी काफ़ी एक्सटेंड हो चुकी है तो इसके लिए हम बॉट भी बनाएंगे एंड देन उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें ये नेमिंग कन्वेंशंस फॉलो करने पड़ेंगे. एंड ईज के लिए भी ये काफ़ी हेल्प करता है. लाइक सी प्लस प्लस देखते ही पता चल रहा है, जावा देखते ही पता चल रहा है. इन केस अगर कोई छोटा बच्चा भी आके देखता है हमारी रिपोजिटरी, लाइक उसको जावा सी प्लस प्लस एंड सबके एक्सटेंशंस नहीं पता, तो लैंग्वेज नेम से भी पता लगा सकता है वो. मतलब यूज़र फ्रेंडली है काफ़ी है. एंड बाकी के भी अगर आप देखो लाइक इंटरव्यू क्वेश्चंस में आप डायरेक्टली इंटरव्यू क्वेश्चंस पुट कर सकते हो जो कि आपके इंटरव्यू में पूछे गए या फिर कोई आपने इंटरव्यू बिट से सॉल्व किया हुआ है एंड आपको काफ़ी अच्छा लगा है तो आप इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस में पुट कर सकते हो. इंटरव्यू बिट सॉल्यूशंस एक अलग फोल्डर भी बना हुआ है. तो रिपोजिटरी काफ़ी वास्ट है, तुम कहीं भी पुश कर सकते हो आप अपना कोड. एंड कॉन्टेस्ट के अंदर अभी के लिए खाली दो ही है, कोड शेफ, कोड फोर्सेस. एंड हम ऐड कोडर के भी सॉल्यूशंस डालने स्टार्ट करेंगे. यहाँ पे हम धीरे धीरे अभी ऐड करने स्टार्ट करें. लाइक अभी कुक ऑफ और लंच टाइम ही है कोड शेफ के जो कि सितंबर वाले हैं. एंड अभी अक्टूबर का लॉन्ग चैलेंज खत्म होते हैं उसके भी क्वेश्चंस हम पुश कर देंगे. ओके, सो कोड फोर्सेस के भी चलते रहेंगे ऐसे. एज यू कैन सी, these were the contests that many of us has pushed coordinate and या सो मतलब काफ़ी लोग जो है वो लैग कर रहे थे नेमिंग कन्वेंशंस में, जैसे कि मैं अभी दिखाता हूँ. या सो यहाँ पे जब फाइल चेंज पे हम जाते हैं यहाँ पे तो ठीक दे रखा है. जैसे यहाँ पे इन्होंने एकदम से ही नेमिंग कन्वेंशन दे रखा है कि स्पेस की जगह पे हाइफन है एंड एट द एंड अंडरस्कोर जावा लैंग्वेज है. ओके, कुछ के थोड़े इश्यूज रहते हैं जैसे कि शेयर दिस वन.
या सो अगर आप यहाँ पे देखो तो स्पेसिंग दे रखी है, लैंग्वेज नेम नहीं है, कोई एक्सटेंशन नहीं है, तो ऐसे सबको प्रॉब्लम होती है। क्योंकि अब जैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इन्होंने पुश किया, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का जो कोड है वो डीपी का पार्ट है। एक तो डीपी टेक्निक का एक फोल्डर बन सकता था यहाँ, जिसके अंदर उसकी एल्गोज आ सकती थी एंड उसके अंदर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की आ सकती थी एल्गो। एंड कंट्रीब्यूट करना कैसे इस रेपो के अंदर वो भी मैं बता देता हूँ थोड़ा। तो जैसे अभी तो मैंने फॉक कर रखी है रेपो, बट जो फर्स्ट यूज़र हैं वो पहले रिपोजिटरी फॉक करेंगे। देन जैसे ही वो फॉक करेंगे, जैसे अभी तो मेरी फॉक्ड है यहाँ पे दिखा दी इसने, तो यहाँ पे आपकी एक अपनी कॉपी बन जाएगी एंड यहाँ पे आपका नाम आएगा, यूज़र नेम जो भी आपका गिटहब पे होगा /hacktoberfest। ओके, नाउ अब यहाँ से आप क्लोन्स कर सकते हो कोड को। हेलो। या सो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे मेरी रिपोजिटरी है, तो मैं यहाँ पे क्लोन कर सकता हूँ। ऑल्दो अभी इस वाले सिस्टम पे मेरे गिट नहीं है लोकल पे, तो मैं अभी नहीं कर पाऊँगा। इसका एग्जांपल प्रवीण आपको फर्दर अभी देगा, कंट्रीब्यूट करके दिखाएगा वो पूरा रेपो पे। एंड या और आपके ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूशन के काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स भी होते हैं। मतलब काफ़ी सारे प्रोग्राम्स होते हैं जैसे जी सॉक, आउटरीच इज फॉर फीमेल्स ओनली, एंड पॉस एशिया का कोड हीट भी निकलता है। और भी काफ़ी प्रोग्राम्स होते हैं, तो इससे कम्युनिटी बॉन्डिंग भी होती है आपकी, मतलब आपका नेटवर्क भी इंक्रीज होता है एंड साथ के साथ आपको ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करने का मौका भी मिलता है एंड गिफ्ट्स स्वैग्स तो एडिशनल बेनिफिट होते ही हैं जब भी आप किसी ओपन सोर्स रिपोजिटरी में कंट्रीब्यूट करते हो। जैसे इवन इन हैकटूबर फेस्ट अगर आप कंट्रीब्यूट करें तो आपको फ्री टी शर्ट मिल रही है एंड स्वैग्स भी मिल रहे हैं। सो दैट वाज माय पार्ट। प्रवीण, ओवर टू यू। प्रवीण, हेलो।
Yeah, so due to some network issues, Praveen is unable to show us the example. So Anubhav is giving us example of pushing the code. Yeah. So as you all can see, this is Anubhav's repository, which he has forked from the CP Geeks ADG item. Now moving on to the local system, he has the setup of Git. And, Anubhav, Thanks, Anuj. Over to the CPGeeks ADG item Hacktoberfest repository, and this is the original repository, and this is the one that I forked. So my master branch is 48 commits behind CPX. तो इसका मतलब है कि CPX ADC item master branch पे जब मैंने लास्ट टाइम अपडेट करी थी उसके बाद 48 कमिट्स और हो चुके हैं, इसलिए मेरी ब्रांच उससे 48 कमिट्स बिहाइंड है, मतलब पीछे है। तो मुझे पहले इसको उसके साथ क्या कहते हैं इवन करना पड़ेगा। उसके लिए मेरे को अभी वेट, सो ये फोल्डर है और इसके अंदर सारी वो फाइल्स है जो यहाँ पे है, लेकिन ये वाली जो फाइल्स हैं ये इनमें कुछ ऐसी फाइल्स हैं वो 48 कमिट्स में जो इसमें नहीं है। तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मैं अपनी ब्रांच चेंज करता हूँ, गिट चेकआउट मास्टर। ओके, अब देखो जैसे हमने चेक करा था गेट रिमोट -v से हम चेक करते हैं कि हमारा क्या क्या हमने सेट कर रखा है। ओरिजिन मेरा सेट है मेरी रिपॉजिटरी हैक्टोबरफेस्ट, तो और अपस्ट्रीम मैंने सेट कर रखा है cpgeeks adg item master। तो मुझे अब अपस्ट्रीम से पहले चेंजेस निकाल पुल करने हैं। तो गेट पुल अपस्ट्रीम मास्टर। तो ये देखो अब ये चेंजेस यहाँ कर दिया। ये देखो ये इतने सारे चेंजेस थे, प्लस 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 ये माइनस दिखा रहा है एक चेंज। तो ये सारे चेंजेस हमने वहाँ पे नए चेंजेस हुए हैं जो मेरी रिपॉजिटरी में नहीं थे, अब ये आ गए। तो ये मेरी इसके अंदर रिपॉजिटरी के अंदर चेंज आ गया है। अब मुझे ये चेंजेस लोकल पे आ गए, अब मुझे अपनी वाली में पुश करने हैं। तो गेट पुश ओरिजिन पे करने हैं, क्योंकि हमने ऊपर अभी देखा था कि ये रही मेरी ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन वाली कहाँ पे थी, ये वाली। ठीक है, जो ये 48 कमेंट्स बिहाइंड है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे जाएंगे गेट पुश ओरिजिन मास्टर। ठीक है, मे बी रीलोड करते हैं। ये देखो, तो अब मेरी ब्रांच इवन हो गई है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, क्या कहते हैं, मुझे एक नई इसमें चेंज डालना है। तो मैं क्या करूँगा, जिसे लगा लो मैं कोई भी क्या कहते हैं रीडमी में चेंज करता हूँ। जैसे ये रीडमी फाइल है डाटा स्ट्रक्चर्स की, तो मैं इसमें लिख देता हूँ कि क्या कहते हैं वी हैव क्रिएटेड डिफरेंट फोल्डर्स इफ एनीवन। तो मैंने बस एक ये लाइन ऐड करी है। ठीक है, तो मैं वी एस कोड यूज़ कर रहा हूँ, तो ये मेरे को यहाँ पे मैंने कर रखा है। तो जैसे ही मैंने ये सेटअप करा था इसमें अपना गेट, तो मेरे यहाँ पे दिखा देता है कि ये मैंने चेंजेस हुए हैं। ठीक है, इसको हम वेरीफाई कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे आप चेक करोगे गेट ऐड सॉरी गेट स्टेटस से चेक करोगे आप कि देखो मॉडिफाइड डाटा स्ट्रक्चर्स रीडमी फाइल। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अब ये हमने मॉडिफाई करी है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, स्टेज करेंगे। ठीक है,
तो स्टेज करने के लिए गिट ऐड, या तो आप क्या कहते हैं फाइल का नाम डाल सकते हो, या तो आप सिंपल गिट ऐड और डॉट लिखो और कर दो। ठीक है, तो इससे अब आपका स्टेजिंग एरिया में आ गया। ठीक है, अब हम गिट स्टेटस करेंगे, तो ये मॉडिफाइड हो चुकी है और हमने इसको स्टेज कर दिया है। तो अब क्या करना है, हमें इसको अपनी लोकल रिपॉजिटरी में डालना है। तो उसके लिए हमने क्या कमांड यूज़ करी थी, गिट कमिट। ठीक है, कमिट करेंगे। उसके बाद शुभ ने बताया जैसे कि हमें मैसेज डालना होता है कि हमने क्या चेंज करा है। तो गेट कमिट -m, उसके बाद अपडेटेड द रीडमी फाइल। ओके, स्पेसिफाई कर सकते हो कि आपने डाटा स्ट्रक्चर फोल्डर में करा है या वैसे, तो मैं अभी बस यही मैसेज कर रहा हूँ। उसके बाद गेट कमिट कर दिया मैंने, एंटर। ठीक है, वन फाइल चेंज। ठीक है, अब हम स्टेटस चेक करेंगे। ठीक है, तो मतलब जो मेरा लोकल रिपॉजिटरी में है तो उस पर सब कुछ क्या कहते हैं, कोई चीज़ कम जरूर अब कमिट वमिट होगा, ये सब कुछ ट्री वर्किंग क्लीन है। अब मुझे ये करना है, इस चेंज को अपनी लोकल में पुश कर, वो ओरिजिन वाली ब्रांच जो थी मेरी ये वाली, इसमें पुश करना है ताकि फिर मैं पुल रिक्वेस्ट डाल सकूं। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, गेट पुश। हमें कहाँ पे करना है, ओरिजिन पे, क्योंकि मैंने ओरिजिन बता रखा है ऊपर, और ये मेरा ओरिजिन सेट है ये वाला। ठीक है, तो गेट पुश ओरिजिन मास्टर। ठीक है, अब ये देखना, अब मैं यहाँ पे जाऊँगा और रिफ्रेश करूँगा। दिस ब्रांच इज वन कमिट अहेड ऑफ CP गिग्स ADGITM मास्टर। ठीक है, तो मतलब मेरी मास्टर ब्रांच अब एक कमिट अहेड है, तो मैंने एक कमिट उससे ज़्यादा कर लिया है। ठीक है, तो अब मैं जाऊँगा पुल रिक्वेस्ट पे। देखो, जैसी अगर आपकी ब्रांच उनसे कुछ कमिट्स अहेड होगी तो आपके पास अपने आप ऑप्शन आ जाएगा कि आप पुल रिक्वेस्ट कर सकते हो। और देखो यहाँ पे चेंजेस भी आ जाएंगे कि आपने क्या चेंज करा है, प्लस। और कोई माइनस करता, मैं कोई भी लाइन या कुछ भी हटाता, तो वो यहाँ पे माइनस का रेड कलर से लाइन आ जाती और यहाँ पे माइनस का साइन आ जाता। ठीक है, एम आई ऑडिबल? से ओके, अनुभव जी आवाज। Yes. मैंने ये लाइन ऐड कर दी है। उसके बाद अब मुझे पुल रिक्वेस्ट करनी है। पुल रिक्वेस्ट करी, यहाँ पे आपको कोई भी कमेंट ऐड करना है। ये मेरी जो पुल रिक्वेस्ट करूँगा उसकी हेडिंग है कि वो क्या बता रहा है। ठीक है, तो मैं इसमें लिख सकता हूँ कि आई हैव अपडेटेड द रीडमी फाइल। और अगर जैसे शुभम ने बताया कि कोई आप इशू रिजॉल्व कर रहे हो तो यहाँ पे हैशटैग करके उस इशू का नंबर लिख दिया करो। देखो, ये हमारे इश्यूज क्रिएट हुए थे पहले। ठीक है, जो भी अभी इश्यूज है हमारे, तो इसमें अगर मैं हैशटैग ये 104 हो गया, तो अब अगर मैं इसको पुल रिक्वेस्ट डालूंगा तो ये हैशटैग वहाँ पे दिखाएगा कि ये वाला मैंने क्या कहते हैं इशू रिजॉल्व करा है। तो अभी मैंने कोई इशू रिजॉल्व नहीं करा है, तो इसलिए मैं हैशटैग हटा रहा हूँ। अनुभव, वो पुल रिक्वेस्ट के नंबर थे वो पुल रिक्वेस्ट थी जो मतलब आई है। नहीं, जो अभी जो तू बता रहा था वो पुल रिक्वेस्ट थी। ठीक है, तो कोई कोई क्या कहते हैं, अब मैंने यहाँ पे अपना कमेंट ऐड कर दिया। अब मैं क्रिएट पुल रिक्वेस्ट करूँगा। अब देखो, मेरी ब्रांच के कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है बेस ब्रांच के साथ, तो ये आपको दिखा देगा। अगर कोई भी चेक फेल्ड हो जाता है तो यहाँ पे दिखा देगा कि आपने जैसे, कभी कभार क्या होता है कि जैसे ये वाली मेरी ब्रांच होगी, जाओ, ये वाली है, कभी कभार ये जो हमारी मेरी ब्रांच होती है कभी कभी इवन नहीं होती, तो वहाँ पे कभी कभार मर्ज कॉन्फ्लिक्ट आ जाते हैं या हो जाता है। तो इसलिए सबसे पहले जब भी आप क्या कहते हैं किसी भी रिपॉजिटरी के अंदर अपनी पुल रिक्वेस्ट डाल रहे होते हो, तो पहले सबसे पहले आपको वहाँ से चेंजेस पुल करके अपनी ब्रांच को इवन रखना होता है। ठीक है, उसके बाद अगर आपको वहाँ पे मेंशनड होता है कहीं की रिपॉजिटरी में कि डेवलपमेंट ब्रांच से करो, जैसे इधर भी मेंशनड होगा कि आपको नई ब्रांच बनानी होती है, गेट चेकआउट न्यू ब्रांच का नाम। तो हर बार क्या करना है, पहले आपको अपने चेंजेस सिंक रखने हैं। सिंक रखने के लिए नीचे आपको कमांड्स दे रखी होती है, जैसे ये रही कीप योर रिपॉजिटरी इन सिंक, तो आप ये वाली कमांड्स भी यूज़ कर सकते हो, गेट फेच अपस्ट्रीम, उसके बाद गेट मर्ज अपस्ट्रीम मास्टर। ठीक है, तो क्या कहते हैं, या फिर आप गेट पुल अपस्ट्रीम मास्टर कर सकते हो। तो दोनों ही कमांड से आपके क्या कहते हैं रिपॉजिटरी जो आपकी ये वाली अपनी वाली है, ये वाली
और जो क्या कहते हैं अपस्ट्रीम में सेट करी है वो इवन हो जाएगी। ठीक है, अब मैंने पुल रिक्वेस्ट कर दी थी, तो अब क्या कहते हैं निकुंज एक बार देख लिया अपनी रिपॉजिटरी में, एक बार वो आ गई होगी पुल रिक्वेस्ट। हाँ, निकुंज हाँ अगर आ देख गए लिया। या फिर I hope my screen is visible. Yeah, so as you can see, here is the pull request of Anubhav Sharma, and he has updated the README file. Let me open this for you. Now I will check out his commit, what he has done. Okay, he has updated the README file. Files changed. Yeah, so as you can see, here is the line that he added, and now I can merge it. Okay, so I will go on conversation and check out the label Hacktober accepted. As the new condition terms and conditions are updated for Hacktoberfest, so we need to add the label on PRs, and now I will merge this. Now I have merged this, so we can check out this here. Yeah, so the has updated. Mhm. हाँ, तो Yeah, वही Anubhav. Yeah. क्या सर, और आपको कोई प्रॉब्लम्स आए थे इंटरव्यू के आइडिया पे, तो पूछिए, तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अब आप इंटरव्यू सबमिट कर सकते हो सारे। तो ठीक है, तो किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। अनुभव, आई थिंक ये लोग सो रहे हैं। रिमूव कर दे भाई। मैं यहाँ डाउट हूँ. I don't think there will be any doubts. Is there any doubts? यार तुषार मेहता, तुषार टंडन, कोई डाउट है भाई? थैंक यू, थैंक यू एवरीवन. हाँ.